हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे द लेक आइसले ऑफ इनिस्प्री, जिसको लिखा है W.B. यीट्स ने। ये आपके बीए के सेकंड सेमेस्टर की 7th यूनिट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 6 अप्रैल को है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉट वॉज द फुल नेम ऑफ यीट्स? यीट्स का फुल नेम क्या है? विलियम बटलर यीट्स। वेयर वाई यीट्स बॉर्न? यीट्स का बॉर्न कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। इन विच मूवमेंट यीट्स टुक एक्टिव पार्ट विद ओलियरी? द आंसर इज बी, द आयरिश मूवमेंट। वेन वाई यीट्स बॉर्न? यीट्स का बॉर्न कब हुआ था? 1865 में। When did Yeats died? Yeats की डेथ कब हुई थी? 1939 में। In which volume the poem The Lake Islay of Innisfree was published? The answer is A, The Rose। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो लेक आइसले ऑफ इनिस्फ्री इनकी जो पोएम है वो इनके कौन से वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी? द आंसर इज द रोज। वेयर इज इनिस्फ्री? इनिस्फ्री एक जगह का नाम है जो कहाँ है? आयरलैंड में, जहाँ पर पोइट ने अपना बचपन बिताया था। अगर आपको इसकी समरी देखनी है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में इसकी समरी देख सकते हैं। विच बाय W.B. Yeats फर्स्ट पॉपुलर पोएम? द आंसर इज सी, द लेक आइसले ऑफ इनिस्प्री इनकी फर्स्ट पॉपुलर पोएम थी। विच वाई W.B. Yeats लास्ट पोएम? इनकी लास्ट पोएम का नाम था द ब्लैक टॉवर। हु ऑफ द फॉलोइंग वाई W.B. Yeats फिलोसफिकल टीचर? द आंसर इज सी, मोहिनी चटर्जी और पुरोहित स्वामी दोनों ही उनके फिलोसफिकल टीचर थे। What does the poet hear night and day in the core of his heart? The answer is A, the sound of lake water lapping against the shore of Innisfree. What beautiful sight will he get to see there? The answer is D, all of ever. The glimmer of midnight stars, the linnet flying about in the evening, the purple glow of the noon. What did the poet hope to get there? The answer is peace. Name the poet the lake Islay of Innisfree. The answer is C, W.B. Yeats. What did the poet hear at Innisfree Island? Innisfree Island पर वो क्या सुनना चाहता है? The answer is C, lapping low sound of. What did the poet see in the Innisfree land? The answer D, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। मतलब ग्लिमरिंग मिडनाइट, पर्पल नून, द वेविंग फुल ऑफ लिनिट्स विंग, उन सभी को वहाँ देखना चाहता है और सुनना चाहता है। वेयर विल द पोइट हैव पीस? पोइट को पीस कहाँ पर मिलेगा? द आंसर इज सी, इन इनिस्फ्री लैंड। व्हाट काइंड ऑफ लैंड इज इनिस्फ्री? द आंसर इज बी, पीसफुल एंड लविंग। नेम द 3 things दैट द पोइट वुड लाइक to do at Innisfree? The answer is D, all of these। मतलब plant 9 beans trees, make hives for honey bees, make a house of clay and wattles. What sound does Yeats yearn to hear? The answer is A, sound of bees। How many lines are there in the poem? इस पोएम में कितनी लाइन्स हैं? 12 लाइन्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। What kind of scenes is there at midnight at Innisfree? Answer is C, charming and glimmering। What is the best thing about Innisfree? जो Innisfree है उसके बारे में बेस्ट थिंग क्या है? It is a place of great natural beauty। Name the plants the poet wanted to grow at Innisfree। The answer is C, bean plant। According to Yeats, modern civilization is full of A, violence। What is the sound of rocking of the cradle is including in the poem The Second Coming? The answer is C, the birth of new God। The theme of the poem The Second Coming is the prophecy of new civilization।
What is the required to end the represent violent civilization? The answer is B, a violent god. The bird fly when they see. The answer is A, monstrous shape. The lake Islay of Innisfree is a, क्या है ये? एक लिरिक है. द आंसर इज डी. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि द लेक आइसले ऑफ इनिस्प्री क्या है, तो एक लिरिक है. What was Yeats's first proper Irish poem according to the critics? The answer is A, Lake Islay of Innisfree. What inspired Yeats to think about an ideal Iceland? Answer is D, a fountain. Who read Byzantium? Byzantium को लिखा W.B. Yeats ने. I hear lake water lapping with low sound by the shore. The line occur in which stanza of the poem The Lake Islay of Innisfree? The answer is B. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लाइन इस पोएम की बहुत ही इम्पोर्टेंट है. रॉबर्ट विट्स पोइट्री इज बी लिरिकल. W.B. Yeats पोइट्री रिमार्केबल फॉर द यूज ऑफ माइथ एंड फॉकलोर. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है. इसी के साथ द लेक आइसले ऑफ इनिस्फ्री और W.B. Yeats से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में डिस्कस करा. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.